ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। फिर से सबका कैमरा बंद। अभी कैमरा बंद रखोगे ना तो मैं ना तुम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर से आने को ही नहीं दूंगी। अभी मैं नाम लिख के रखती हूँ कि कौन अपना थोबड़ा नहीं दिखाता है, मैं उसको लूंगी ही नहीं अभी नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। Have you read the message on the group that there will be a test on this Sunday on solutions chapter? And already I have written all the instructions regarding the test. ठीक है, yesterday we have completed with the theory part of this chapter. अपने न्यूमेरिकल्स बचे हैं, तो एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अच्छा जस्ट चेक के ये हो गया है क्या सम एट 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मोलालिटी मोलालिटी वाला तो हो ही गया ना। ओके ओके, एक ही बाकी है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट वाला। ओके, सो प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन नाउ। रेडी? आई होप एवरीवन इज सिटिंग विद द लॉग बुक। ओके, राइट डाउन 3.4 grams। मैम एक सेकेंड। हाँ हाँ, ओके। यस मैम। Okay, 3.4 grams of CaCl2, 3.4 grams of CaCl2 is dissolved in 2.5 liters of water, 2.5 liters of water at 300 Kelvin, at 300 Kelvin, full stop. What is the osmotic pressure of the solution? What is the osmotic pressure of the solution? Question mark. Vent-off factor is 2.47. Vent-off factor is 2.47. Now yesterday you have written for electrolytes also. So CaCl2 is your electrolyte. It is dissolving into the water at this temperature. We have to calculate what is the osmotic pressure, and I is also given, correct? So this is your nothing but W2. This is your volume in liters. This is your temperature. This is your Vent-off factor, and you have to calculate here pi. That is the osmotic pressure, correct? Now, first of all, what is the formula which we are going to apply here? So pi is equals to I into, याद है आपको formula, W2 upon M2 into V RT. Do you remember this formula? अभी I क्यों लिखा मैंने? Because it is for electrolyte, and already they have given you the hint over here that Vent-off factor is 2.47. अभी Vent-off factor दिया है तो मतलब it is applicable for electrolytes, ठीक है? So I है अपने पास, yes. W2 है, yes. T है, yes. M2 is there. M2 तो we have to Yes. calculate. नहीं नहीं, M2 नहीं दिया है ना.
M2 is given? No, it is not given. So this we have to calculate and volume is given. तो R का value तो fixed होता है, which is 0.08205 dm cube atmosphere per Kelvin per mole. ठीक है, this is the value of this. अच्छा, अभी M2 कैसे निकालेंगे? That is CaCl2. Atomic mass number of calcium is 40 plus 2 into 35.5. So 40 plus 71 कितना हो गया? 111 gram. आ गया M2. So my M2 is equals to 111 grams per mole. ठीक है, this is the unit of this. Now I will substitute. Pi is equals to 2.47 into 3.4 into 0.0820 कितना लिखा था? 5 ना? 5. Temperature is 300 divided by M2 is 111 into volume is 2.5. Substitution समझ आ गया सबको? Okay. Now what I will do, I will shift this क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है this is in the 0 point, so you have to shift it so that it will become easier for you. So 2.47 into 3.4 into, I will make this as 82.05 into 10 raised to कितना हो गया? 1 2 3 minus 3 into 3 into 10 raised to 2 कर दिया. ठीक है, divided by 111 into 2.5. ठीक है, चलो अभी देखो ऐसे हो नहीं कि न्यूमैरेटर अपना डिनोमिनेटर से छोटा आ जाए. ठीक है, बड़ा होना चाहिए. आ जाएगा ना? चलो ठीक है, लेट्स ट्राई दिस. सो वी विल राइट डाउन हियर log of 2.47 plus log of 3.4 plus log of 82.05 plus log of 3. ठीक है, माइनस log of 111 plus log of 2.5 into 10 raised to minus 1. क्लियर है? सबको समझ आ गया? Now you have to take out the log of these terms, add it first. Take out the log of these terms, add it first, subtract and take the anti-log. I hope it is very clear to everybody. देखो मैंने सॉल्व एग्जाम्पल से लेकर, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि 100%, बट 99.5% न्यूमेरिकल्स मैंने आपके लिए है. 1 या 2 कोई तो न्यूमेरिकल छोड़ा होगा मैंने. और बाद में आपका जब भी पेपर 1 हो जाएगा ना पूरा, तो मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे एक 50 मार्क्स का टेस्ट रख दूंगी विथ ऑल चैप्टर्स, न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑल चैप्टर्स. I hope now everybody knows how to take out the logs and all that. किसी को कुछ डाउट है लॉग में तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, डोंट हेजिटेट. मैम हाँ 2 और 3 का लॉग नहीं है इसमें. देखो, जब ये 2 और 3 नहीं होता है ना, तो आप कैसे देखोगे?
24 में 7 एंड 3 नहीं है, मतलब 30 में 0। ओके सिद्धेश? हाँ यस मैम। ओके हाँ, कैसे देखना है बेटा? 24 में 7 देखो एंड देन 30 में 0 देखो। अभी यहाँ कैसे देखोगे? 25 में 0, 34 में 0, लाइक दैट। ओके मैम। हाँ ओके। हाँ करेक्ट है हिनल, वेरी गुड। Write down the unit ATM, atmosphere. Very good. मैम Yes. 111 का log 11.1 देखना है ना? Yes, yes. You have to go to the 11 and then in 11 you see 1. ओके थैंक यू। Okay. Yes. So you will getting over your characteristic as 0 point. फिर 24 में आपने 7 देखा, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0.34 में आपने 0 देखा, प्लस कैरेक्टरिस्टिक विल बी 1 क्योंकि 2 डिजिट है। सो 82 में 0.5 देखा, फिर प्लस 3 था ना तो 0.30 में आपने 0 देखा, ये हो गया आपका न्यूमैरेटर वाला, माइनस फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 1 2 3 डिजिट्स है तो इट इज 2 पॉइंट, प्लस 25 में 0 देखना है तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। करेक्ट है निश्चल, वेरी गुड, बराबर। राइट ऑन द यूनिट एज ATM, एटमॉस्फेयर। चलो व्हाट अबाउट अदर्स? टुमारो वी विल डू पेपर 2। हाँ पेपर 2 सिखाती हूँ मैं तुम लोग को कल, HDA पढ़ाती हूँ, HDO, हैलोजन डेरिवेटिव्स। यस प्रथमेश, वेरी गुड। यस व्हाट अबाउट अदर्स? ओके अदिति, वेरी गुड। पर 0.72 कैसे आया अदिति? 74 आना चाहिए, थोड़ा चेक करो। Final answer after taking out the antilog is 0.745 atmosphere. This should be your answer. वैष्णवी, वेदांत, विघ्नेश, कैमरा ऑन करो। हाँ शिवम, समीक्षा, सानिका। यस करेक्ट प्रचिति, वेरी गुड। यस साक्षी करेक्ट। 0.746 भी आ सकता है, 743 भी आ सकता है, 745 भी आ सकता है। So all answers are correct.
Yes, Gauri, very good. See, please try to solve. जब तक आप लोग खुद से solve नहीं करोगे, you will never learn. Don't keep it that I will write down the correct answer and then I will calculate later on. Don't do that, please. And hopefully everyone has started the studying of this chapter. Done. प्रांजल किधर गई आज? एकदम शांत है. Yes, प्रांजल. मैं सॉल्व कर रही हूँ। ओके ओके, मुझे लगा अब तक बोली नहीं. रुको मिस. मैम ओमकार 0.872. कैसे ओमकार इतना अलग आंसर? हाँ, yes, someone was asking something. मैम एंटी लॉग कैसे निकालना है? हाँ, आपका लॉग का वैल्यू बताओ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद. हाँ, एंटी लॉग कार्ड ओमकार बरोबर. 0.8745 8745 into 10 raised to -1 रहेगा, राइट ना सिद्धेश? हाँ मिस. हाँ, ओके. नाउ टू टेक आउट द एंटी लॉग, व्हाट यू हैव टू डू, ये देखो, ये छुपा दिया. पॉइंट के पहले का जो भी डिजिट रहेगा वो छुपा देना है, ठीक है. नाउ गो टू द पेज ऑफ एंटी लॉग. ओपन किया आपने पेज? यस. नाउ इन दैट गो टू 87. 4 देखो, और जो मेन डिफरेंस है ना छोटा छोटा, उधर पे 5 देखो. ऐड करो एंड टेल मी योर आंसर. 87 में 4 5. आई विल हाइड दिस बिफोर पॉइंट. 87 में 4 5. टेल मी योर आंसर. यस बेटा सिद्धेश. मिला? बोलो. हाँ मैम. हाँ बोलो. मैम 4 और 5 के दो अलग अलग डिजिट्स हैं, 9 और 10. अरे बच्चा, ये देख, ऐसा बड़ा तेरा लॉग बुक है ना? हाँ, तो ये 4 वाले में, बड़े वाले कॉलम में ये देखेगा 87 में, ठीक है. और मेन डिफरेंस का छोटा छोटा कॉलम है ना, वहाँ पे 5 वाले कॉलम में देखने का, इन दोनों को ऐड करके बोलने का. ओके मैम. समझा मैंने क्या बोला अभी? अभी पहले देख, 87 पे गया, वहां पे बड़े वाले कॉलम में 4 देख, कितना है बोल मुझे. 7482. बराबर, 7482. अभी वो बारीक वाले छोटे कॉलम में सेम लाइन पे जा, 5 जहाँ पे लिखा होगा, 5 वाला कॉलम बता कितना है. 9. 9. बराबर. तो अभी इनको ऐड करने का, अभी समझा? सो 9 and 2 11, कैरी 1, फिर 9, फिर ये कितना हो जाएगा 4 7 4 9 1, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 5 आया ना, ठीक है. तो अभी मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, 7 4 9 1. ये समझ आया? अभी क्या करना है, इमीडिएटली यू हैव टू पुट पॉइंट हियर इनटू 10 रेज टू, ये क्या नंबर है 0, सो 10 रेज टू 0 लगाने का. ओके समझा? मैम. सपोज आई एम हाँ राइटिंग, मैम. सपोज यहाँ पे 1 होता, सपोज यहाँ पे 1 होता, तो आप क्या लिखते हैं, एक के बाद पॉइंट लगाने का. वो सब में रूल सेम है, एक डिजिट के बाद यू हैव टू पुट पॉइंट इनटू 10 रेज टू 1. सपोज 2 होता तो इनटू 10 रेज टू 2. अब ये तेरा ऑलरेडी -1 था, तो 10 रेज टू -1, मतलब एक पीछे जाएंगे, तो आंसर कितना आ गया, 0.7491 एटमॉस्फेयर. अभी समझ आया सिद्धेश अच्छे से? हाँ मिस. हाँ, ओके. जब भी देखो लॉग देखेंगे ना, तो पूरा देखने का, पूरा, कुछ पॉइंट पॉइंट कुछ नहीं, पूरा देखने का. एंटी लॉग देखेंगे तो इसको छुपा देने का, ये वाला देखना है. पॉइंट लगा के जो भी नंबर है उसको रेस टू में लिखने का, बस. 10 रेस टू 0 मतलब 1 रहता है, ठीक है. क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट हम बोलू. रेडी एवरीवन? हाँ बराबर है ओमकार, वेरी गुड. क्या हुआ प्रांजल? इसका फाइनल आंसर क्या आया? फाइनल आंसर इज 0.4 सॉरी 745.
0.745 आया कि नहीं आया प्रांजल? नहीं, क्यों? कुछ तो गड़बड़ किया मैं। ये लॉग आया क्या 0.8745? नहीं, 0.1278। हाँ तो मतलब एकदम ही गलत है, चल वापस कर। हाँ, कर रही हूँ। ठीक है, बाद में कर, अभी मैं बाद में टाइम देती हूँ। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी सबका हो गया? एनी क्वेश्चंस? ओके चलो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक मिनट। हाँ चलो यही लिखो। 0.2 मोलाल, 0.2 स्मॉल m लिखा मतलब मोलाल, मोलालिटी वाला मोलाल। 0.2 मोलाल aqueous solution of 0.2 मोलाल aqueous solution of KCl freezes at 0.2 molar aqueous solution of KCl freezes at minus 0.680 degrees Celsius. Freezes at minus 0.680 degree Celsius. Full stop. Calculate Vent-Off factor. Calculate Vent-Off factor and osmotic pressure of solution and osmotic pressure of solution and osmotic pressure of solution at 0 degree Celsius. Osmotic pressure of solution at 0 degree Celsius. ठीक है, ब्रैकेट में लिखो KF is equals to 1.86 Kelvin kilograms per mole. ठीक है, okay. Now first of all what they have asked us, what is Vent-Off factor, that is I. अभी दिया क्या है, freezing point ना। अभी पहले तो क्या लिखेंगे, molality, small m is equals to 0.2 molar and delta TF is equals to minus 0.680 degree Celsius. ठीक है, ओके। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, दे हैव आस्क्ड अस व्हाट इज Vent-Off factor, मतलब I is equals to what and pi is equals to what, this is a question. अभी देखो पहले मैं क्या लिख सकती हूँ, I is equals to delta TF अपॉन delta TF नॉट, कल वाला फॉर्मूला याद है सबको। upper one is the colligative property of electrolyte and lower one is colligative property of non-electrolyte. Is it very clear? हमने कल ही किया ना, colligative property of electrolyte to the colligative property of non-electrolyte. अभी delta TF तो मुझे पता है, ठीक है, I know the value of delta TF, but I do not know the value of क्या, delta TF नॉट नहीं पता। अभी delta TF भी कैसे हो जाएगा, देखो delta TF is equals to TF नॉट माइनस TF था, तो TF नॉट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस ऑफ माइनस 0.680, मतलब मेरा आंसर क्या हो गया 0.680 डिग्री सेल्सियस। समझा अभी व्हाट आई डिड, ये जो मेरा माइनस में था दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ माय सॉल्यूशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज व्हाट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 में से इसको माइनस करेंगे तो डेल्टा TF मुझे मिल गया है। ठीक है, मैम नाउ आई हैव, हाँ मैम वो जो गिवन में वो डेल्टा TF नहीं दिया हुआ ना, फिर हाँ TF दिया डेल्टा हुआ है। TF ही दिया हुआ है, करेक्ट, इट इज गिवन एज डेल्टा TF ओनली,
but you cannot take it directly as minus because it is always subtracted from 0 degree Celsius. क्योंकि water का freezing point is 0 degree Celsius, so always you have to subtract. देखो उसके पहले वाला भी एक सम था, तभी हम लोगों ने subtract किया था, याद आ गया? हाँ, वो 2.15 निकाला था तभी, ठीक है, ये हो गया. अभी डेल्टा TF नॉट कैसे निकालू? So I have these values KF into M, yes or no? It is directly proportional to KF into M. KF is given as 1.86 and molality is given as 0.2. ये सबको समझ गया इतना? Now we will multiply this. ठीक है? 2 6 12, carry 1. 8 2 16, 17, carry 1. 2 1 2 and 3. एक दो के बाद इधर पॉइंट आ जाएगा, बराबर है? नहीं रे, 3 के बाद पॉइंट आएगा, सॉरी, 1 2 3. 0.372 केल्विन. और यू कैन राइट डाउन डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अगर मैंने ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया वही आने वाला है ना, प्लस माइनस. ठीक है, तो आइदर यू कैन राइट डाउन डिग्री सेल्सियस और यू कैन राइट डाउन केल्विन आल्सो, बोथ आर नथिंग बट द सेम थिंग. इज इट वेरी क्लियर? सपोज आई एम राइटिंग ओवर हियर डिग्री सेल्सियस और यू कैन राइट डाउन केल्विन आल्सो. समझा मैंने क्यों ऐसे बोला? सपोज मैं अगर यहाँ पे 273 ऐड करूंगी तो मुझे यहाँ पे भी ऐड करना है ना, so better I will keep it like this only, or you can write down Kelvin. ठीक है? So what is my I now? I is equals to delta TF upon delta TF naught. What is delta TF? It is 0.680 divided by 0.372. Correct? So I will write down here 680 into 10 raised to minus 3 divided by 372 into 10 raised to minus 3. Cancel हो जाएगा and you have to calculate over here I का value. ये part सबको समझ आ गया? Once again I am just repeating. We have to calculate here I, went off factor. So delta TF upon delta TF naught. ठीक है, this is right. They have given us minus में, but always we are subtracting it from 0. अगर आपने इसको 273 किया तो इसमें भी 273 ऐड करना है, मतलब घुमा फिरा के आंसर आपका सेम ही आना है. तो मैंने इसको डिग्री सेल्सियस में ही लिया है. आइदर यू कैन कंसिडर इट एज डिग्री सेल्सियस और यू कैन कन्वर्ट इट टू केल्विन आल्सो, क्योंकि ऐड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर सभी जगह सेम आने वाला है. ठीक है, सपोज आई एम टेकिंग 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, बात तो एक ही हो गई ना. अगर यहाँ पे ऐड करूंगी तो मुझे यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने नहीं किया. ठीक है, आई हैव कैलकुलेटेड ओवर हियर डेल्टा TF नॉट. So I is equals to delta TF upon delta TF naught, this much amount. And first of all, you have to calculate here किसका वैल्यू? I का वैल्यू. बोलो यहाँ तक क्लियर? किसको डाउट है? 100% क्लियर? हेलो? यस मैम. ओके. हाँ, अभी हम लोग को क्या चाहिए? वेंट ऑफ फैक्टर भी चाहिए ना? ओ सॉरी, वेंट ऑफ फैक्टर मिल गया हम लोग को. अभी हम लोग को क्या चाहिए? पहले इतना सॉल्व करो, फिर मैं आगे का बताती हूँ. फर्स्ट राइट डाउन दिस, राइट डाउन द गिवन. हाँ, यस मैम अपने डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इनटू मोलालिटी है ना? हाँ. तो डेल्टा TF नॉट कैसे, वो फॉर्मूला नहीं नहीं, है ना? देखो ये जो ये कांस्टेंट है, राइट? KF Yes, is ma'am. constant, so it is applicable for both electrolyte also and for non electrolyte also. And they have given us molality directly. वो पूरे solution का molality है ना. solution में तुम्हारा electrolyte भी है और non electrolyte भी है, so these are applicable for both. Okay, yes. Okay, हाँ. Yes. Any other questions बच्चों? First of all you solve this, एकदम आराम से समझ के करो, don't get confused, आराम से. First of all write down the given. M is equals to 0.2 molal. Delta TF is equals to minus 0.680 degrees Celsius. I you have to calculate, pi you have to calculate, and KF is given. तो पहले फॉर्मूला लिखा, इधर पे डेल्टा TF निकाला, फिर डेल्टा TF नॉट निकाला. ठीक है, मैं ऊपर पकड़ती हूँ कैमरा so that you can copy down whole thing at once.
मिस आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। दिख रही है बच्चा। मिस इसमें नहीं दिख रही थी, वो श्रेया का दिख रहा था कुछ। तो जहाँ पे मैं हूँ ना उधर जाके पिन कर। नहीं हो रहा जहाँ है पे मिस। मेरा मिस नहीं ऐसे होता है कैसे? वैसे पिन, बीच में नहीं ही कोई होता है आता है फिर आपका मेरे स्क्रीन पिन में चला तो जाता होता है। है। मेरे को तो पिन होता है अगर मुझे मिस किसी को आपके देखना इसमें हो तो। होगा ही ना, क्यों? होस्ट हो इसलिए। चल मैं होस्ट नहीं हूँ, वीरेंद्र वो नहीं एक मिस अपना। मेरे हाँ इसमें मिस, लेकिन आपका ये है ना इसलिए, हम मेरे इसमें तो अभी हो रहा है क्या? देखो अभी दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। जहाँ पे मैं हूँ ना उधर जाके पिन करने का, तो फिर दिखता है वो। अब बहुत दूर चली जाती हो। देखो अभी कैसे मालूम है? अभी जैसे सपोज मुझे अपूर्वा को देखना है तो मैं अपूर्वा पे जाके ऐसे लॉन्ग प्रेस करूंगी ना तो मुझे आता है पिन अपूर्वा। तो फिर वो अपूर्वा दिखने लगता है, तो मैं जिसको चाहूँ उसको देख सकती हूँ। तो ऐसे तुम लोग मुझे जहाँ पे मेरा नाम है ना, जहाँ पे मेरा स्क्रीन है, वहां पे जाके लॉन्ग प्रेस करोगे तो यू विल गेट ऑप्शन पिन अनपिन, ऐसे होता है तो फिर दिखेगा मेरा स्क्रीन। नहीं आ रहा है मैम। ऐसे मैम वो कैसे रे डबल तुम लोग टैप को? करके आता है। डबल टैप करके आता अच्छा तुम लोग को डबल, मुझे को ऐसे लॉन्ग प्रेस करके आता है। ठीक है तो डबल टैप करके आता है तो करो ना, क्या तुम लोग भी है? मतलब पता है कि कैसे आता है तो भी उलटा सुलटा क्वेश्चन पूछना है। मी प्रांजलला ना धुवायला पाहिजे, काय पण विचारते. मिस माझ्या याच्यात नव्हतं होत, म्हणून मी बोलली. अभी हुआ, तर डबल माझा टैप कर। किया। अभी दिख रही हूँ मैं, मतलब मेरा पेपर। अभी आप बोल रही हो तो अभी आपका ही दिखेगा ना। अरे तुम लोग में वो सेटिंग नहीं है क्या ऐसा? मेरे में वो सेटिंग है, कोई भी बोले जिसको देखना है उसको ही देख सकते हैं। ऐसे कैसे रे? मैम हमारा हाँ एंड्रॉइड है ना इसलिए शायद। ऐसा कुछ नहीं है, सबका एंड्रॉइड ही है। आपका आईफोन है ना। आईफोन सबसे डब्बा है फोन, कुछ चलता नहीं है उस पे ढंग का। 1 पॉइंट कितना आया? सब लोगों ने मुझे आंसर कर दिया, रुको मैं चेक करती हूँ। 1 मिनट। 1.828, यस वेरी गुड, 1.828 ये आ जाएगा सबका आय का वैल्यू। अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बोलो। हाँ हाँ Yes, miss. ओके, आया ये आंसर सबका आया 1.8, क्या था, 2828। अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 2 पॉइंट, इसका भी 2 पॉइंट। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो यू विल गेट आंसर वेरी इजीली, इसमें कुछ टेंशन नहीं है। हो गया? ओके डन। चलो अभी हम लोग का क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं है। वी हैव टू कैलकुलेट पाई ऑल्सो। सो आई इज इक्वल्स टू पाई अपॉन पाई नॉट। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? पाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट पाई नॉट, और आई तो मैंने अभी निकाल दिया 1.828। सो आई विल कैलकुलेट हियर पाई नॉट। पाई नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W2 अपॉन M2, ठीक है, इंटू V एंड देन RT। ये फॉर्मूला है पाई नॉट का, राइट? व्हाट इज W2 बच्चों? आपको डायरेक्टली दिया हुआ है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, याद है? ये वैल्यू पूरा दिया हुआ है डायरेक्टली। दिस इज N2 actually, so it is directly given as 0.2 molar. Is it very very clear? मैंने क्या बोला, सबको समझा? This is mass upon molar mass, right? That means it is number of moles of solute, which is already given as 0.2 molar. और उसमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम विल बी 1 लीटर, क्योंकि हम लोग हमेशा वॉल्यूम किस पे लेते हैं? लीटर्स में। सो इट विल बी डायरेक्टली 1 लीटर। सो नाउ सब्स्टिट्यूट 0.2 इंटू आर का वैल्यू क्या है? 0.0820, क्या है? 6 है कि 5 है? 6, 5, चलो 5 ले लो। इंटू टेम्परेचर क्या बोला था देखो क्वेश्चन में, एट 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन।
अभी यहाँ पे गधे जैसे जीरो नहीं लिखना, पूछो क्यों, इसको जीरो लिखोगे तो पूरा आंसर जीरो हो जाएगा, समझा? एंड डिवाइडेड बाय 1. अभी इट इज वेरी सिंपल, यू कैन मेक इट एज 2 इन into 8205 into 273 into 10 रेस्ट टू कितना शिफ्ट किया इसका, एक 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 और ये 10 रेस्ट टू -6, बराबर ना? यस और नो? आई हैव शिफ्टेड ऑल द थिंग्स 1 2 3 4 5, तो इसका 10 रेस्ट टू -5 और इसका एक 10 रेस्ट टू -6. नाउ यू कैन टेक आउट log of 2 प्लस log of 8205 प्लस log of 273. समझ रहा है क्या सबको? into 10 raised to -6. Understood? ये देखो यहाँ पे Yes, डायरेक्टली क्यों ma'am. लिखा मैंने 0.2, बिकॉज इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ये था ना, तो मेरे को आंसर दिया है ये डायरेक्टली, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दिस, आई विल डायरेक्टली राइट ऑन 0.2 मोलार. और वॉल्यूम कितना होता है हमेशा 1 लीटर, सो इट विल बी 1 लीटर. एंड 0 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 0 से किसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो वहां पे 0 नहीं करना है, ठीक है? सो यू विल गेट द वैल्यू फॉर पाई नॉट, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का यू विल गेट द वैल्यू फॉर पाई. ये करो कैलकुलेट, पाई नॉट का वैल्यू निकालो. क्लियर है सबको? गिव मी अ वेरी क्विक यस इनटू द चैट बॉक्स. इज इट वेरी वेरी क्लियर? हाँ, पहले वाला भी एंटी लॉग लॉग से ही किया है मैंने. पार्ट जो आहे तो हाँ तो कोई बात नहीं. R2 मध्ये चेंजेस करायचे. जरा 2 मिनट में आंसर दिखाओ ना. 1.828 आया है मेरा. हाँ 1.828 परफेक्ट आंसर है, R3 जो असेल हाँ बराबर आंसर है, गुड. दिख रहा है सबको अच्छे से? ये नहीं है कुछ भी. W2 इज नथिंग बट N2, तो N2 का वैल्यू डायरेक्टली दिया है इधर. वॉल्यूम मैंने लिया 1 लीटर, सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू फर्स्ट. टेल मी द वैल्यू ऑफ पाई नॉट. मिस हाँ, मिस वॉल्यूम 1 लीटर है, ये कैसे समझा आपने? क्योंकि वो कांस्टेंट है ना, ऑलवेज यू हैव टू टेक द वॉल्यूम इन लीटर्स, सो इट इज अ कांस्टेंट. मोलाल सोल्यूशन दिया हुआ है ना, मोलाल एक्वियस सोल्यूशन, सो इट विल बी 1 लीटर्स. ओके. ओके, मैम हम्म, 8205 का लॉग 3 पॉइंट में आएगा ना? यस करेक्ट, इट विल बी 3 पॉइंट एंड देन 82 में 05. कैरेक्टरिस्टिक चेंज करते हो रहने का, 1 2 3 4 है तो इट विल बी 3 पॉइंट. यस तन्मय, करेक्ट आंसर. तन्मय ने देखो आंसर भी निकाल दिया, वेरी गुड. और किस, अरे वाह सबका आ गया. हिनल ऑल्सो गॉट द करेक्ट आंसर. विशल गुड. तन्मय करेक्ट, बराबर आंसर है. हम लोग तीनों एकदम फास्ट है कैलकुलेशन में, बड़ा दौड़ करते हैं. जैन सिस्टर एंड ब्रदर्स. कितना हंस रही है हिनल. बाकी लोग तो रोते रहते हैं, एक बेचारा वेदांत भी अच्छे करता है फटाफट. बड़ा प्रथमेश 10 to -6 कैंसल होईल बड़ा, जरा बघ. आंसर बराबर है तेरा, 10 to -6 कैंसल हो जाएगा वो. ऐसे कोई तो नंबर होगा जिससे वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बराबर है आंसर. यस प्रचिति, करेक्ट. गोम्स, संजय, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके ओके. आशीष इतना बड़ा नंबर नहीं है, उसको पॉइंट शिफ्ट कर. आंसर बराबर है, पॉइंट का कुछ तो गड़बड़ है.
जस्ट चेक इट. गौरी एकदम गलत आंसर है. जस्ट चेक इट प्लीज. मॅम अँटीलॉग पण काढायचं आहे ना? हो. जेव्हा आपण लॉग अप्लाय करतो ना तेव्हा आपल्याला अँटी लॉग करायचंच असतं. जेव्हा सम मध्ये लॉग असेल ना तेव्हा आपल्याला करायचं नाही. ठीक आहे. मी सांगेन ते जेव्हा आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करणार आहेत ना तेव्हा खूप सारे असे लॉग वाले ज्याला आपण अँटी लॉग नाही करणार आहेत. जेव्हा सम मध्ये असेल डायरेक्टली इन द फॉर्मूला यू आर नॉट सपोज टू एंटी लॉग. व्हेन यू आर अप्लाइंग द लॉग उसको निकालने का भी ना बाहर. प्रांजल अभी मैं तुझे बहुत मारूंगी. आंसर है इसका आई विल टेल यू. प्रथमेश चेक किया आया आंसर 4.480 ATM आता है आंसर. इसका एग्जैक्ट आंसर आता है पाई नॉट. यस वेदांत बराबर है चलेगा. गुड. यस समीक्षा. हाँ ओके. कैंसल हुआ ना प्रथमेश वो. आ गया सबका. चलो अभी I is equals to pi upon pi naught. तो pi is equals to I into pi naught. I क्या निकाला था हमने. हाँ चलेगा 4.481 करेक्ट साक्षी. So I is equals to क्या था 1.828 into 4.480. जो भी आपका आंसर आया है just multiply these two by taking out log. If you want, you can take out the log of these two also. Log of this plus log of this. Yes, correct है तन्मय. Very good. ये तन्मय कैलसी पे नहीं सॉल्व कर रहा है ना तू. श्रेया is it clear? हाँ good. Niti are you there? Miss Niti. Yes Nishil correct. Okay Niti. Vaishnavi. Vaishnavi can you hear me? Please reply. Yes Sakshi very good perfect answer. Unit will be ATM. Vaishnavi okay ठीक है. Pranav is it very clear? Parth. Yes Inal perfect answer very good. Mr. Parth, are you there? Okay, Parth, धन्यवाद. गौरी चेक करो आंसर. क्या हो गया तुम्हारा आंसर. जस्ट चेक इट. 2 मिनट रुकती हूँ मैं. फटाफट करो चलो. आंसर हाँ बराबर है प्रांजल. आंसर 8.189 करेक्ट है. आप लोग का आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 8.192. अप्रोक्सीमेटली 8.2 आएगा सबका ATM. किसी को 18 मिलेगा किसी को 19 मिलेगा. हाँ बराबर है गौरी. 4.490 दैट इज ओके. हाँ 194 इज ऑल्सो करेक्ट वेदांत. वेरी गुड. हो गया.
Siddesh, are you able to solve? Those who are new admissions, अभी मुझे सबके नाम नहीं पता है. हाँ? Yes, miss. हाँ, okay. Vignesh, are you able to solve? और वो एक साईराज करके भी लड़का था ना, साईराज ma'am. राज. हाँ, ओके. एब्सेंट रहने का नहीं है, लेक्चर को नहीं भी समझ में आएगा तो भी आने का लेक्चर में. यू आर नॉट सपोज टू मिस एनीथिंग, क्योंकि लास्ट पार्ट है ना, तो इट इज ओके. नेक्स्ट चैप्टर से सब समझेगा. एब्सेंट नहीं रहना है कभी भी. हाँ. हाँ. मिस चलो हाँ बोलो. मिस डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीएफ नोट निकालते समय हमने इसमें जो फॉर्मूला यूज कर किए हैं वही कर रहे हैं ना हमेशा. यस 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 करेक्ट, वही फॉर्मूला यूज करना. ओके. और Correct. एक्सचेंज नहीं चलेगा ना, वही उसके लिए वही यूज करना पड़ेगा. हाँ हाँ यस यस ओके. करेक्ट. चलो नेक्स्ट सम बोलूं मैं अभी तुम लोग को. रेडी? मिस प्रांजल. हाँ प्रांजल ने तो पहले आंसर बता दिया. ओके चलो चलो आगे बढ़ो. अभी है ना तुम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करो. ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन बोलती हूँ. अभी आधा सब तुम लोग करेंगे, मैं सिर्फ स्टार्ट करके दूंगी. आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन. 0.01 मोलाल aqueous फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड किस में होता है? फॉर्मिक एसिड किस में होता है? यू नो एंट, जब चींटी आपको काट के जाती है तो आपको खुजली होता है ना बहुत. दैट इज बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड. दैट इज व्हाई द एंट्स इन ग्रीक कॉल्ड एज फॉर्मास. फॉर्मास मतलब एंट. And the acid secreted by the ant is called as formic acid. And the formula is HCOOH. समझा? Yes, bee sting also. Correct है पार्थ. Write down 0.01 molal. 0.01 molal aqueous formic acid solution. Aqueous formic acid solution freezes at minus 0.021 डिग्री सेल्सियस. कितने पे फ्रीज हो गया वो? माइनस 0.021 डिग्री सेल्सियस. calculate its degree of dissociation. Calculate its degree of dissociation. ठीक है मॅम फ्रीजेस हाँ. नंतरचा रिपीट करू शकता? हाँ का नहीं. लिखो 0.01 मोलाल aqueous formic acid solution freezes at minus 0.021 degree Celsius. Full stop. Calculate its degree of dissociation. मतलब क्या कैलकुलेट करना है? अल्फा. And in bracket write down Kf is equals to 1.86 Kelvin kilograms per mole. ये है आपका प्रश्न. What we have to calculate? Degree of dissociation. कल ही किया था हमने. Alpha is equals to I minus 1 upon N minus 1. All are agreed with this? अभी इसके लिए मुझे क्या चाहिए? I need I and also N. तो N तो मैं निकाल सकती हूँ. Right? What is N? It is a formic acid.
राइट? तो फॉर्मिक एसिड कैसे डिसोशिएट होगा? फॉर्मिक एसिड विल डिसोशिएट एज HCOOH, मतलब H प्लस प्लस COO, सॉरी CO माइनस मिस HC। हाँ बोलो। मिस ये क्वेश्चन डिसोसिएशन तक ही है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? हाँ, उसके बाद KF का वैल्यू भी है। हाँ ओके, क्योंकि मैंने नेटवर्क चला गया था, मैंने हाँ, ओके ओके, आफ्टर दैट KF is given, right? So N is equals to, एक मिनट, हाँ हाँ बराबर, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड कैसे डिसोशिएट होगा? इट इज H प्लस एंड COO माइनस, ठीक है। वो मैंने रॉन्ग फॉर्मूला लिखा था, HCOOH, हाँ राइट राइट, इट इज कॉल्ड एज मेथनोइक एसिड आल्सो। सो इट विल डिसोशिएट इनटू टू आयंस, एक H प्लस प्लस COO माइनस, HCOH एंड H, ये क्या हो गया? एक मिनट, हाँ जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ सॉरी सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गया। फॉर्मिक एसिड डिसोशिएटेड एज HCOOH, it will dissociated as H plus it will also dissociate as HCOO minus, ठीक है। तो कितने आयंस बने यहाँ पर? 2, that is why you are going to write down N is equals to 2। अब ये N तो मुझे मिल गया, I have to calculate here I, right? तो अभी I कैसे कैलकुलेट करेंगे? What do you think? How will you calculate I? ध्यान से देखो, molality is given, KF is given, right? So I will write down here delta TF is equals to I into KF into M. Yes or no? All are agreed with this? Hello, hello. Yes, ma'am. हाँ, तो अभी देखो I क्या हो गया बच्चों? I is equals to delta TF upon KF into M। अभी वापस से मैं डेल्टा TF को क्या करूंगी? किसमें से माइनस करेंगे हम लोग? 0 में से, 0. क्योंकि वो माइनस में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अभी माइनस कितना था? माइनस 0.021, मतलब प्लस 0.021 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, या फिर ऐसे रहने दिया तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलो अभी डेल्टा TF क्या लिखेंगे? 0.021 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू मोलालिटी इज 0.01। चलो शुरू हो जाओ, अभी सॉल्व करो फटाफट। You make this as 21 divided by 1.86 into 1 into 10 raised to minus 2 कर दो इसको। और ये भी क्या हो जाएगा? 10 raised to आपने कितना किया? 1 2 3 -3, है ना? So it will be 21 upon 1.86 into 10 raised to, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +2, मतलब -1। समझा क्या किया मैंने? I have shifted these 3 points, I have shifted these 2 points, ये ऊपर जाके -1 और ये ऐसे ही रहेगा। अभी इसका log एंटी लॉग निकालो, you will get the value for I। प्लीज गिवन दिखाओ। Given this is molality small m, ठीक है, this is delta TF and we have to, ये फॉर्मूला है आपका which you have to apply, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड ऐसे डिसोशिएट हो गया तो इसका नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितना आ गया? एक, मतलब 2 आ गया।
ठीक है, क्योंकि n की जगह आपने कल लिखा था ना x प्लस वाई, मतलब ये दोनों का एडिशन, सो इट इज 2. सो i ऑफ दिस, हाँ कितना आ गया तन्मय? 1.1, हाँ बराबर है. मिस ऊपर का दिखाओ. तन्मय अभी इधर सब्स्टिट्यूट करो अल्फा का वैल्यू, आंसर निकालो. हो गया प्रांजल? 1 मिनट. Yes, Nishil, correct. You can substitute that value here and you can take out the answer. N is equals to 2. अभी देखो अल्फा है ना, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आंसर लिखना है. मैं इसी इधर क्या लिखा है? I -1 उसके नीचे N-1 है ना? हाँ, yes. I -1 upon N -1. मैम अल्फा को अभी परसेंटेज में बनाने के लिए इंटू 100 से मल्टीप्लाई करने का ना? Yes, 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 correct. तो तुम लोग का आंसर जो भी था उससे 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा. यस प्रथमेश, 11 पॉइंट आया, हाँ बराबर है. पर प्रथमेश वो ना 1 पॉइंट रहेगा, 1.129. चेक करो जरा. यस गौरी, करेक्ट. अरे वाह, सब लोग फास्ट हो गए. हिनल इंटू 10⁻² फिर -1 रहेगा ना. समीक्षा 0.11 कैसे आया रे? मैम मुझे भी 11 आया. हाँ बराबर है ना, इंटू 10⁻1 भी तो है, शिफ्ट करो ना. 11.29 इंटू 10⁻1, एक पीछे जाओ. 1.129, ये हो गया आपका कौन सा वैल्यू? दिस इज अ वैल्यू फॉर I. Everybody got this? I is equals to 1.129. Yes or no? Hello, hello. Yes, ma'am. Yes, miss. हाँ सबको आ गया, ठीक है. यस अभी मैम. क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है. सो आई विल राइट डाउन अल्फा इज इक्वल्स टू I -1 अपॉन N -1. I कितना आया हमारा? 1.129 -1 अपॉन 2 -1, मतलब 1 हो गया. सो 1.129 -1, मतलब आंसर कितना आ गया? 0.129. बट अल्फा इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. सो 0.129 मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब मेरा परसेंटेज कितना आ गया? 12.9%. इतना ही आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हुआ है. I hope it is very very clear to everybody. अभी आ गया ना सिद्धेश? Now you understood how to calculate log and all that, anti-log. अभी एकदम Yes, बराबर miss. निकला आंसर. Yes, very good. Any other questions, बच्चों? I hope everyone is understanding. See, I have taken here more than 15-16 questions, huh? Along with your numericals from textbook. सब कुछ लिया है मैंने almost. यस मैम क्लियर है. क्लियर है? चलो अभी एक मिनट, एक क्वेश्चन में देती हूँ. टेक्स्ट बुक के पीछे वाला जो 15th क्वेश्चन बाकी था ना, वो करते हैं. चलो मिस 1 मिनट प्रीवियस पेज दिखाओ. आनंद, तुम्हारा हमेशा कैसे रह जाता है सब? हो गया. देख तो रही थी मिस, रह नहीं गया था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं. अभी ये है आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 टेक्स्ट बुक के पीछे वाला क्वेश्चन है. बोलू, अ 0.15 मोलाल, एकदम सेम क्वेश्चन है.
A 0.15 molal aqueous solution of KCl, freezes at, कौन सा क्वेश्चन के जैसा है जो अभी तो इसके पहले ही किया था ना, एकदम सेम वैसा है, सेम, ठीक है। 0.15 मोलाल aqueous solution of KCl freezes at -0.510 डिग्री सेल्सियस, खाली नंबर्स चेंज किया है। A 0.15 मोलाल aqueous solution of KCl freezes at -0.510 degree Celsius full stop. Calculate Ventov factor and osmotic pressure. Calculate Ventov factor and osmotic pressure at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius, full stop. Assume water of solution, sorry, assume volume of solution, assume volume of solution is equal to that of water. Assume volume of solution is equal to that of water. कौन सा वाला क्वेश्चन है ये पता है? इसके पहले वाला आपने किया ना, 0.2 मोलाल एक्वेस सोल्यूशन -0.680, सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला है, सब कुछ। चलो शुरू हो जाओ सब लोग। Should I repeat the question once? A 0.15 molar aqueous solution of KCl freezes at -0.510 degrees Celsius. Calculate Ventov factor and osmotic pressure at 0 degrees Celsius. Assume volume of solution is equal to that of water और वहां पे लिख दो KF. KF का वैल्यू नहीं दिया आपके टेक्स्ट बुक में, which should be provided. It is 1.86 Kelvin किलोग्राम पर मोल। आएगा सॉल्व करने बच्चों? एकदम सेम क्वेश्चन है, बताती हूँ Yes, कौन सा ma'am. इसके पीछे। हाँ एकदम सेम है, एकदम खाली नंबर्स अलग किया है। For your reference, I will just open that page so that you can solve this. ये देखो सेम फॉर्मूला है। मीन्स डेल्टा अयो, ये टीएफ वाला का नहीं। फॉर्म डेल्टा टीएफ का वैल्यू भी उतना ही रहेगी ना? क्या? मैम हाँ कुछ नहीं केएफ कुछ का नहीं। वैल्यू भी सेम ही है क्या? हाँ, KF का वैल्यू सब जगह सेम रहता है ना। इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अच्छा, वाटर, ठीक है। तो आपके पास डेल्टा TF है, तो आप उसको TF नॉट माइनस TF करेंगे पहले। आई चाहिए ना, क्या था फॉर्मूला फॉर आई? अभी देखो, 0 माइनस 0.510, तो ये कितना हो गया? 0.510 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया डेल्टा TF, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या है? इट इज डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TF नॉट। डेल्टा TF मिल चुका है, डेल्टा TF नॉट कैसे निकालेंगे? डेल्टा TF नॉट, अदिति का क्वेश्चन, ठीक है। KF इंटू M, KF दिया है, M दिया है, सॉल्व करो, बाद में पाई निकालो। सेम सेम मेथड यूज करना है, सेम। समझा सबको? किसको नहीं समझा? Just one question before we have solved this. Only numbers are different. Rest of all the things are same. I will give you 10 minutes to solve this, huh?
I hope you all are able to solve. आराम से करो, कोई कहीं नहीं है, रिफर स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ सेम है, सिर्फ आपको नंबर्स चेंज करने हैं। पानी का वॉल्यूम भी बोला है 1 लीटर ही लेना है, आर का वैल्यू सेम है, 0 डिग्री सेल्सियस बोला है, मतलब 273 आप लोग लोगे। एक मिनट, हाँ निश्चिल, लेट मी चेक। हाँ करेक्ट, इट इज राइट। एकदम परफेक्ट आंसर निकाला, वेरी गुड। यस अदिति, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। पर अदिति वो है ना, 1 पॉइंट आएगा, 1 पॉइंट। यस सिद्धेश, करेक्ट, वेरी गुड। अदिति देखो, 1.88 रहेगा। यस प्रांजल, गुड। अरे वाह, आ गया तुम लोग को भी फटाफट। ये सब नीट में आए हुए क्वेश्चंस है, 4-4 मार्क्स के लिए। व्हेन वी विल सॉल्व नीट जेडबल ना, दैट टाइम आई विल शो यू दीज क्वेश्चंस। हाँ जरा 2 मिनट वो वाला सम दिखाओ ना। करेक्ट है प्रचिति, वेरी गुड। ये वाला, यही वाला ना। वो आई का आंसर है, प्लीज दिखाओ ना आई का आंसर। अरे पर कौन सा बताऊं, सम तो बताओ। हाँ अब दिखा दिखा, हो गया हो गया। हो गया। हाँ अभी इतने सारे सम्स किए और उसने बोल रही है सम दिखाओ, सम दिखाओ, कौन सा सम दिखाओ वो तो बोल। हाँ करेक्ट है प्रचिति, गुड। आई का आंसर सबका ऑलमोस्ट सेम आया है, विच इज 1.828, वेरी गुड। यूनिट क्या आएगा उसका? आई का यूनिट था कुछ नहीं ना? चलो आगे बढ़ जाओ अभी सब लोग फटाफट। मिस मेरा आई का वैल्यू 1.835 है कुछ। 1.83, हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, दैट इज ओके।
Okay, so I'm getting some answers. हिनल ये फाइनल आंसर है? एक मिनट, हाँ देख के बताती हूँ। नहीं हिनल, फाइनल आंसर इज रॉन्ग। टू 273 ओमकार, आपको क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में, 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है। ओमकार, आर यू देयर? Yes, ma'am. हेलो, हाँ हाँ, ओके। कैन यू सी 0 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट वेंटॉफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। अभी मुझे बता, अगर तू वहां पे आर टी की जगह पर 0 लिखेगा तो क्या होएगा? सब आंसर 0 हो जाएगा ना। तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा? 273 में, समझा? So that is your Yes, ma'am. temperature. Understood? हाँ, correct. Yes, Tanmay, pi is perfect. हिनल, pi नॉट निकाला? एक मिनट, हाँ, pi नॉट निकाला। तन्मय, pi नॉट का वैल्यू जरा पोस्ट कर। मैंने क्योंकि pi नॉट नहीं निकाला, मैंने ना एक झोल करके डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया था, तो फिर वो मेरा आंसर थोड़ा आजू बाजू नहीं आया। तन्मय, pi नॉट का वैल्यू क्या? हाँ बराबर है हिनल, आई एम सो सॉरी, इट इज राइट, करेक्ट, राइट हिनल, इट इज राइट। pi नॉट का वैल्यू, हाँ वो 8205 कहाँ से आया? प्रीवियस सम 8205 इसमें नहीं, प्रीवियस सम में आर ना, आर क्या है? इट इज अ गैस कांस्टेंट व्हिच इज हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ तो फिर उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। 0.08205। यस, इसका वैल्यू कांस्टेंट है। यस, हाँ ओके। ये दीदी करेक्ट। अभी सबको पाई नॉट आने वाला है 3.359 के आसपास, और फिर उन सबको ये आई से मल्टीप्लाई करो एक दूसरे को। सबका बुक मैं चेक करूंगी हाँ, जिस दिन सब ओपन हुआ, और अगर तुम लोग का बुक नहीं रहा तो तुम लोग सोच लेना कि मैं तुम लोग का क्या हाल करूंगी। अगर एक भी सम गायब रहा तो, और एक ही बुक में भी सब लिखा रहेगा ना, तो मैं सर ही फोड़ दूंगी तुम लोग का। मैम पाई नॉट की वैल्यू कहाँ दिया हुआ है? आशीष, बाहर जा, एक पत्थर ला और अपने सर पे ना जोर से मार। पाई नॉट ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना तू? हाँ मैम। तो फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछते रहे तुम लोग। जोर से मार मतलब खुद के सर पे, नहीं तो मुझे मारेगा। मैम पाई ढूंढने बोला था ना? पाई ढूंढने का है ना आशीष, तो आई इज इक्वल्स टू पाई हाँ अपॉन मिस। पाई नॉट। तो पहले तू पाई नॉट ढूंढेगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो पाई का वैल्यू आएगा। यस सेम मैम। सम है वो। मैम फिर पाई हाँ पकाओ, क्या बोलो? एकदम मैम सेम समय, क्या तुम लोग रोते रहे? बोलो। मॅम पाय नॉटची ती व्हॅल्यू अँटीलॉग मध्ये करून येणार ना? हाँ हाँ, येस येस, पाई हाँ, नॉट की वैल्यू ओके. पण एंटी लॉग मध्ये करून येणार। येस, यू हैव अप्लाइड लॉग, तो उसको एंटी लॉग करने का। जब भी तू लॉग अप्लाई करेगा ना अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो उसको एंटी लॉग करने का हमेशा। तो ये पाई नॉट का वैल्यू आ जाएगा। अभी पाई आई इज इक्वल टू पाई अपॉन पाई नॉट। आई तुम लोगों ने निकाला, पाई नॉट निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको, आंसर आ जाएगा। रुको, अभी मुझे किसी ने तो आंसर पोस्ट किया है कुछ तो। समीक्षा 6.0 थोड़ा सा दूर हो गया, बट ठीक है। निश्चल करेक्ट आंसर। एंड मॅम पाय नॉटची व्हॅल्यू मला 3379 येते. 3379 59 रहेगा, थोड़ा चेक कर किधर एडिशन सब्ट्रैक्शन में चालेल, पण काय हरकत नाही। 3.379 ना, कोई बात नहीं, लास्ट का ही नंबर है, इट इज ओके। पुढचं कर, ह्याला ह्याच्या मधून क्या बोलते हैं मराठी में, मैं भूल भी गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, चल अभी समझ गया ना? मराठी में क्या बोलते हैं? बेरीज। मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? गुणाकार। हाँ गुणाकार. गुणाकार, सॉरी सॉरी। और बेरी किसको? डिवीजन। ऍडिशन प्लस प्लस ओ, प्लस को बेरी बोलते हैं। ओ सॉरी सॉरी, ओके ओके। आर ची व्हॅल्यू
येणार नाही बाळा ओमकार, ही आरची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते. ही आरची जे व्हॅल्यू असते ना ते कॉन्स्टंट असते. तर तुम्हाला काढायचं नाहीये, तुम्हाला बाय हार्ट करायचे, लक्षात ठेवायचे ते. द वैल्यू ऑफ आर इज 0.08205 एटीएम में. और जब भी आप जूल्स में करोगे ना तभी अलग रहता है, मैं बाद में बताऊंगी वो. ओके ओमकार सर, थैंक यू सो मच. Yes. यस प्रांजल. हाँ करेक्ट है 273 भी प्रथमेश. कांस्टेंट ही है ना? क्या? 273. यस 273. अभी 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273. ओके मिस. मैंने कितने बार बोला, अरे बाबा देखो कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो सब आंसर 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको 273 लिखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखते हैं. ओके बराबर है प्रथमेश तुम्हारा आंसर, वेरी गुड. यस अदिति करेक्ट. पर थोड़ा सा ना 6.1 आना चाहिए तुम्हारा, 6.3. तेरे लॉगबुक में मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है अदिति, क्योंकि थोड़ा सा ना अलग आता है आंसर. मेथड सब बराबर करते हो लेकिन शायद थोड़ा सा कुछ. पुराना लॉगबुक है क्या अदिति वो, कि न्यू है एकदम? मिस ये वाला है. दिखाओ. हाँ तो आना चाहिए उससे आंसर, न्यू है एकदम. मुझे लगा पुराना है क्या. लो यस अपूर्व करेक्ट, वेरी गुड. यूनिट क्या आएगा? एटीएम, एटमॉस्फेयर. So here I have completed with everything. This chapter is done today. Tomorrow we will start with the organic part, HDA. So if you want, you can make a separate notebook for organic chemistry, क्योंकि उसमें बहुत सारे चैप्टर्स है और 4 तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है, तो वो 4 चैप्टर में आपको कम से कम 2 बुक लगने वाला है. और फिजिकल में भी आपको ऐसे तो मुझे आई विल सजेस्ट यू टू ब्रिंग द न्यू नोटबुक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है. और थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन रिवाइज करके आओ 11th स्टैंडर्ड का. ठीक है. So tomorrow we will start with the new chapter HDA. It is a quite big chapter, but again it is very easy. So we will do 2 organic chapters then, HDA and alcohol phenols. Then I will come back to your physical chemistry. ठीक है. So I hope these 2 chapters are perfect with everybody. There will be a test on Sunday. Do it nicely जैसे last time किया था वैसे करो. कॉपी भी नहीं ना करते हो तुम लोग, इधर उधर से छापते नहीं हो ना. ओके ठीक है. चलो शुड आई एंड द मीटिंग नाउ? मैम आंसर का है? आंसर है 6.14. एक मिनट रुको, हाँ सबने भेजे हैं, सबका एक कॉमन आंसर. 6.1368. 13 और 14 और 6.1368 समथिंग ATM, एटमॉस्फेयर. ओके ओके मैम. यस
Now I think you all have bio lecture also, right? So you all can take 2 नाही नाही, मिस ma'am, ते cancel. कॅन्सल झालं. कैंसिल हो गया? अच्छा अच्छा, हा ओके ते काहीतरी ओके प्रॉब्लेम आहे सरांकडे. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है. चलो, should I end now? अभी तो कुछ नया सिखा नहीं सकती 2 मिनट में, तो tomorrow we will do and do Yes. all your textual questions nicely. कुछ डाउट रहेगा तो मुझे पूछो. ओके, चलो, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन. बाय मिस, थँक्यू मिस. बाय Bye, बाय, ma'am. वेलकम, बाय बाय बाय. मिस.